As you can see that my topic is introduction to artificial intelligence, machine learning, neural network, and all those kind of thing. So can you see my screen? Is my Yes, we screen can. available? Yeah, Yes, we yes. can see. Okay. So anyone have any idea about artificial intelligence, machine learning, neural network, deep learning, like what it is or anything? I think it's more like you're training the computer based on certain data to perform certain actions. Like that's pretty generalized, but I guess maybe describes what artificial intelligence machine learning does, right? Yeah, so it's like a kind of, we are trying to create some self understanding and self thinking machines. Like if we give data, if we like give an understanding to a machine, it is similar to that. So like what we do now is that I will going to introduce what is artificial intelligence, what is machine learning, what is neural network, and all these things like introduction basis. So okay, let me start. So first of all, artificial intelligence is that, as you can see, it is made or produced by human beings other than occurring naturally. Like we all are intelligence, we all having some kind of intelligence, but artificial is like we are giving computer or some machine an intelligence so that it can perform task automatically without our intervention. So as you can see that artificial means like human produced or human created thing, and intelligence means like acquiring knowledge or skills, so that we are providing some skills or knowledge to the machine so that it can perform some certain task. So हिंदी में इसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि. Like मेरे को ये वर्ड ढूंढने में बहुत टाइम लगा था. कृत्रिम बुद्धि. So इसका हिंदी मीनिंग है कृत्रिम बुद्धि, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही हो गया. तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिंपल सा है. गूगल मैप्स में आपने ट्रैफिक मोड देखा होगा कि लाइक वो लाइव ट्रैफिक वगैरह दिखाता है. तो किसी को कोई आइडिया है कि वो कैसे ट्रैफिक दिखाता है लाइव? जो बाकी के मोबाइल वहाँ पे लाइव होते हैं उनके थ्रू. हाँ, तो मतलब वहां पर एक कंसेप्ट आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि लाइक अपना जो गूगल मैप्स वगैरह है उसके अंदर वो अलग अलग डिवाइसेस से जीपीएस डेटा कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है एनोनिमसली, ताकि मतलब एक ग्रुप बनाता है उसको, एक पूरा एक न्यूरल नेटवर्क टाइप बनाता है अलग अलग डिवाइसेस से कि कौन सा डिवाइस किस स्पीड पे चल रहा है, वो सारी चीजें. और उसके बाद उन सबको लाइक एक एल्गोरिदम के थ्रू उनको प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में ट्रैफिक कैसा होने वाला है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन और अलग अलग. लाइक अभी But अगर आप मैप्स खोल के satellites are देखोगे तो involved, no? Satellites are involved in Google Maps, no? satellite are used for GPS location to like identify the location or to map our location on the map. So Okay. basically for the traffic mode it uses multiple devices data from multiple devices. cars हो गई, like बहुत सारी आजकल cars आती है उसमें भी इंटरनेट कनेक्टेड रहता है, तो उनकी लोकेशन के थ्रू प्रेडिक्ट करना अलग अलग चीजों को. अभी अगर आप लोग देखोगे गूगल मैप्स पे तो ज्यादातर हाईवेज हर चीज ग्रीन ही बता रहा होगा, लाइक नो ट्रैफिक एट ऑल. मैंने देखा था कि लाइक तो बैंगलोर में अभी भी अच्छा बैंगलोर में अभी चालू है. ओके, सो दिस इज द स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ एआई. अदर और भी अलग अलग चीजें हैं कि लाइक आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह. तो उसमें कोई आप एक प्रोडक्ट देखते हो तो उससे रिलेटेड सजेशंस आपको शो होने लग जाते हैं, जो रिकमेंडेशन करने लग जाता है वो कि आपको ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, इससे सिमिलर प्रोडक्ट. तो वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं एआई यूज आता है. सिमिलरली यूट्यूब के अंदर वीडियो रिकमेंडेशन हो गया, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा. इंस्टाग्राम, फेसबुक That पोस्ट में भी हो गया कि that आप is लोगों ने more like data analysis, no? Like they are tracking our data and then analyzing it to understand our but taste or these, something. yeah, that was the data analysis part, but all these things are actually done by a machine. We just gave understanding to the machine how to analyze the data, and machine is doing everything automatically. So this is the part of artificial intelligence. We gave intelligence to the machine and machine is performing their actions. सिमिलरली लाइक फेक रिव्यूज हो गए. अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले न्यूज में आया था कि गूगल जो है वो जीमेल पे 10 मिलियन ईमेल्स जो स्पैम ईमेल है उसको बंद कर रहा है, इसको ब्लॉक कर रहा है.
तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज आ रहा है कि उन्होंने कुछ बता दिया कि भाई ये ईमेल में ये कीवर्ड्स आए या ये लिंक्स आए तो वो सारी स्पैम है, उसे ब्लॉक करना है। यही वो सारी एप्लीकेशंस होगी। उसके अलावा भी दोस्तों आप लोगों ने चैटबॉट वगैरह भी यूज किया होगा या देखा होगा, गूगल असिस्टेंट, सीरी, कोर्टाना, एलेक्सा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एआई यूज आ ही रहा है। मतलब आज हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं एआई यूज आने लग गया है। So what do you think future में AI कहाँ तक जा सकता है? Like, do you have any you guys have some vision or something? Yeah, definitely. So एआई का ही फ्यूचर है आने वाले टाइम में। लाइक हर एक चीज, इंसान आलसी होते जा रहा है, उसको बिस्तर पे चाहिए हर चीज। तो उस हिसाब से एआई कहीं ना कहीं, रोबोटिक्स हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, कहीं ना कहीं हर जगह पे एआई यूज आएगा डेफिनेटली। बट हाँ, मूवीज जैसा ना हो जाए कि एआई ने आप पे कब्जा कर लिया, आपकी जो सारी चीजें एआई कन्वर्ट कर रहा है, तो वो चीज नहीं सोचता। Do you believe in it? Like, do you believe in it? Actually, I have a fear of that. I have the fear of that. Yeah, I have a fear of that. Okay, how मतलब about कि this? हो सकता है। See, that's the part where true AI comes in. जब वो अपने आप को और वापस समझदार बनाने लग जाएंगे, that's what where Yeah, that's the like where they come in कि वो अपग्रेड होते जाएंगे अपने आप और, and then they'll do something that we have not expected them to. So Like, that was this the part actually of a happened- machine learning. This actually Okay, happened with so do you guys two Facebook do AI you guys chatbots. So, sorry, who was speaking? Samriddhi? Yeah. Yeah, so do you guys think that even we humans were once upon a time AI and some other creatures were using us and now we are dominating the world? We developed some kind of Definitely, yeah. Exactly. I will call it evolution. I actually don't remember the name of that movie. Machines will in evolve which someday. humans Right? realized actually that they're actually robots and things like that. iRobot you are talking about. Are you calling it's the Matrix series? No, not the series. It's a movie. I don't remember No, the name of that Matrix movie. is a 3 movie series. Okay. Yeah, I actually don't remember where I watched it. So that's what I was thinking about. But yeah, हाँ, हॉलीवुड में तो ज्यादातर मूवीज इसी टाइप से भरी पड़ी है। Right. इसमें एआई के Yeah. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें दिखती है। Guys, अगर पैंडेमिक से बच गए तो we have machines coming for us. No, but my view is different in this topic. According to me, all these things are the creation of human brain. So human brain is more powerful than all these Yes, machines. so So we can nothing can be overpower. dangerous According to human than the brain. human brain. बट Yeah. एक चीज है ना कि इंसान मरता है, मशीन मरेगी I नहीं। don't know. Idealistic scenario. Idealistic scenario. I'm They have not I'm posed- watching the Vampire Diaries. हाँ, immortality उसमें ऐसे They are भरी immortal, पड़ी है। नहीं, वो क्या है ना, आज मतलब machine- उनको ऐसा बनाना पड़ता है कि एटलीस्ट कोई ना कोई ह्यूमन बचे, ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा रहना पड़ता है। लाइक मिरर जैसा बनाना चाहिए फिर उनको। तो उनके लिए रेड इमरजेंसी बटन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए फटाफट रेड इमरजेंसी बटन दबा के उन्हें स्टॉप कर दो एज इट इज। Okay, अभी थोड़ा नियर फ्यूचर में आता है एंड व्हाट डू यू थिंक लाइक कौन सी फील्ड में डू यू थिंक कि एआई जा सकता है या एआई है ऑलरेडी? अभी रिसेंटली जो अपने आरोग्य सेतु ऐप है उसमें भी यूज Yeah. आया है। वो अभी नियर AI. फ्यूचर का एग्जांपल है कि उसको यूज करते हुए वो लोग ब्लूटूथ वगैरह से एनालाइज करके आपके आसपास में कहाँ पर कोरोना वायरस वाले विक्टिम्स है या ऐसा कुछ है, उसको फिर वो लोग मैप पे दिखा देते हैं। Exactly. बट Yeah. और सिमिलर ऐप इज डेवलप्ड बाय गूगल एंड एप्पल, दोनों को मिला के, मतलब दोनों मिला के वो चीज बना रहे हैं। I heard about that Okay. एप्पल recently. दोनों मिलके उसी पे काम कर रहे हैं। That's all Okay, about AI. I have a question. Ankit. या Yeah, look, you said that Kritrim Buddhi, I mean, the artificial intelligence is what we have, I mean, the machines are doing what we have told them to do. I mean, we have given them coding and everything. Okay, but can it be possible that machines start developing its own understanding of everything, या whatever डेफिनेटली happening around it? या एक्चुअली Actually, they're doing that. One example was seen of that happening. Yes. They were understanding. They created some code language which they only understood.
Yeah, I think Am I that happened right? on Facebook. Every closed it's chatbot project just because the two bots were talking to each other in a different language which was not understandable to any other person over there. या डेफिनेटली एक्चुअली अगर अपन उनको समझने की कोशिश मतलब वो देंगे, क्षमता देंगे कि लाइक वो खुद ही समझ सके, वो आगे डेवलप कर सके। लाइक मशीन लर्निंग का एक पार्ट यही है ना कि आप उनको रो डेटा दे रहे हो कि वो उसे एनालाइज करके आगे की प्रेडिक्शन करे, तो कहीं ना कहीं वो उसको लाइक एक लेवल के ऊपर जा सकते हैं डेफिनेटली। आज इमेज रिकॉग्निशन में यही तो होता है कि आज आपने गूगल पे कोई भी इमेज डालते हो तो वो एनालाइज कर लेता है, गूगल लेंसेज वगैरह हो गया, वो सब चीजें तो डेटा का भरमार पड़ा है, वो डेटा को कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजें हैं। Actually ऐसा होता ही है ना, मतलब like machines are making machines, that is what is happening. फैक्ट्रीज वगैरह में मशीन ही होती है तो दूसरी मशीन बना रही होती है, whether it's a ट्यूबलाइट और a bulb or a fan or AC, anything. Humans का इंटरवेंशन होता है डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं मशीन्स आर इन्वॉल्व, तो मशीन्स आर मेकिंग मशीन्स, एंड सून फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ मशीन ही बना रही हो, दूसरी मशीन, ह्यूमंस का इंटरवेंशन ना हो. Still, I think it is a fiction only. I don't think so. Because certainly the way human life is evolving and we are going in the different era. I just want to highlight on one point, Ankit, if you have seen, because I used to read a lot and I used to like such kind of things. So if you see nowadays what kind of web series are coming, they are very much precise on these technologies. I have seen many of the series, and if you see the intellectual level nowadays increasing day by day as a human existence, whatever series or whatever things we are watching, we need to give a lot of mind to understand what exactly is happening. So the intelligence of humans is growing very rapidly. But what I think is that in future, artificial intelligence is coming in that is very much useful for day-to-day human life. But that cannot overcome human brain. Because if you see, you are reading all these things. I don't know about much about data science at all. But what I know is that there are certain data centers where all the data is being collected, and then the things are being processed. So I don't think the machines can overcome those data centers or where all these things are stored. I think it can be beneficial for human life in terms of some diseases, rare diseases which are happening. Since I come to know Google is working for AI for some brain mapping and all these things, that will be beneficial for schizophrenia and such kind of patients who are suffering from all those things. So in that way, that will be beneficial for next 5 or 10 years, what I assume or understand. या डेफिनेटली, बट वही है ना कि कहीं ना कहीं अगर उसका मिसयूज होता है, आज अपन ठीक है, अपन तो वही मान के चल रहे हैं ना कि वी आर थिंकिंग ऑफ द गुड थिंग, बट डेफिनेटली देयर आर सम बैड थिंग्स आल्सो व्हिच बैड पीपल हैव इन माइंड, लाइक किसको डिस्ट्रॉय करना, किसी पर अटैक करना, किसी पे क्या करना, तो वो लाइक कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अगर दिमाग में आ रही है, मतलब उसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती है, गुड और बैड डेफिनेटली। वही चीज अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। Yeah. We can only watch. I'm just asking you, you are reading all these things, when these automation coming to our home, like homeless entry, keyless entry, biometric system to reach out to my place, when such technologies are coming in the market, if you have any idea? So actually like recently अभी Xiaomi ने पूरा स्मार्ट होम करके पूरा ग्रुप निकाला था, उसके अंदर उन्होंने लाइक करीब सारी चीजें इंक्लूड कर दी थी और सबको एक नेटवर्क से कनेक्ट करके और उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक वे में कर दिया था। लाइक दीज आर कमिंग बट नॉट एज मच हाई स्पीड, लाइक क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कॉस्ट पे भी इफेक्ट करता है और अलग अलग चीजों पे, अलग अलग फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, तो डेफिनेटली बट इट विल कम इन 5 to 10 years डेफिनेटली। अच्छा, और ये जो अपने मोबाइल और गैजेट्स हैं, ऐसा कहते हैं कि इनका अगर स्पीकर ऑन होता है तो एवरी टाइम दे आर लिसनिंग आवर थिंग्स, मींस बेसिकली लाइक अभी जैसे मेरे घर पे गूगल असिस्टेंट लगा हुआ है, गूगल होम, तो डेफिनेटली अभी मैं इसको बोलूंगा ओके गूगल या कुछ भी चीज है, तो वो कहीं ना कहीं सुन तो रहा है ये, तभी मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो बात अलग है कि ये डेटा गूगल के सर्वर पे जाता है या नहीं जाता है, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ डेफिनेटली वो इसी के अंदर एनालाइज कर रहा है, डेटा को एनालाइज कर रहा है, कंटिन्यूअसली एनालाइजिंग कर रहा है। वही चीज है क्या, वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जैसे एप्पल बोलता है कि हम प्राइवेसी को 100%
लाइक ऊपर रखते कि हम यूजर का डेटा कुछ भी नहीं रखते, और यही गूगल पूरा डेटा यूज करता है, ये सब चीजें हैं। तो वो चीज अपने को पता है, और डेफिनेटली कहाँ क्या यूज हो रहा है वी डोंट नो। अंकित, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अब मुझे जैसे आपने बताया था, सागर है, आपने बोला था कि जैसे फोन से अपना डाटा जाता है और फिर वो इंटरप्रेट करता है, जैसे आपने ट्रैफिक का एग्जांपल दिया, तो वो तो तभी पॉसिबल होता है जब वो हायर सेंटर्स पे जाएगा, और वो हायर सेंटर्स भी तो ह्यूमन ही चला रहे हैं। तो जैसे आपने एग्जांपल आपने गूगल होम का दिया, तो गूगल होम में भी तो ह्यूमन ने ही कुछ ना कुछ कोडिंग की होगी कि स्पेसिफिक डेफिनेटली जब स्पेसिफिक वर्ड्स बोले जाएंगे तो ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, हर वर्ड पे वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अनटिल अपन नहीं चाहेंगे वो जो वर्ड उसके अंदर कोड हो जिस पे वो स्टिमुलेट करे, तब तक तो वो भी आंसर नहीं देगा। बट डेफिनेटली अपन ने वर्ड फिक्स किए हैं, लाइक सपोज करो हे गूगल या ओके गूगल, बट अपन ने वो सेट नहीं किया कि इसका हाई पिच होगा या लो पिच होगा। आज मेरा गला खराब है, मेरी आवाज अलग आ रही है, आज मेरे घर में 4 जने यूज करते हैं, चारों का अलग अलग अकाउंट बनना है, चारों को एनालाइज करना, वो काम तो मशीन ही कर रही है। वो थोड़ा कि अपन ने पहले से सेट किया है, वो खुद एनालाइज कर रहा है, उसको समझ रहा है। आज जैसे सपोज करो एप्पल आईफोन 10 ने आई थिंक 10 से ही फेस अनलॉक का शुरुआत हुई थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपकी लाइक बियर्ड आ जाए, मुस्टैच आ जाए, आप सनग्लासेस लगाओ तो भी वो अनलॉक कर देगा आपका फोन। तो वहां पर कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग ही है, क्योंकि वो आपका फेस तो एक बार रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर उसके बाद बियर्ड आ रही है, तो वो बार बार तो अपन उसके अंदर फिट कर नहीं रहे, वो तो वापस से ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग का काम है। वही चीज है कि लाइक कुछ काम हमने लाइक डाला है कि कुछ पॉइंट से ट्रैक करें, बट उसको समझ के आगे लाइक प्रेडिक्ट करना और उसको एनालाइज करके उसको यूज करना सही चीज में, तो वो कहीं ना कहीं उसमें मशीन लर्निंग का पार्ट यूज आता है। So it's more like machine developing their own code. Yeah, definitely they are writing their own code. मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे वो ट्रैफिक वाली आपने बात बताई थी, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं एक ही कार में बैठ के मल्टीपल फोन्स रखूं, अगर मैं 14-15 फोन एक ही कार में रखूं, तो गूगल मैप तो ट्रैफिक ही दिखाएगा उस जगह पे? अभी रिसेंटली हुआ था, एक इंसान ने ट्रक में या किसी में 50 फोन्स रखे थे और उस ट्रक को जाके हाईवे पे साइड में खड़ा कर दिया और धीरे धीरे ले जा रहा था। तो डेफिनेटली उस पूरी लाइन पे लाइक उस हाईवे पे रेड लाइन शो होने लग गया। तो ये डेफिनेटली 100% एक्यूरेसी तो हम इसे बोल ही नहीं सकते ना। Okay. Yes, everyone, just a second here. I guess there is some glitch over here, and it's showing that meeting time is remaining for 2 minutes. So the link is same. 40 minutes. If in case we are disconnected, just click on the same link again, and we'll be connected in the same room. Okay. In case. Yeah. So next, just a second. Okay. So next is the machine learning part, as you can see on the slides. So machine learning को हिंदी में बोलते यंत्र अधिगम। किसको पता था? तो कहाँ से लेके आए वो? ओह वाओ, वन कहाँ से लेके आए वो? लाइक मैंने ढूंढा बहुत ज्यादा कि लाइक मशीन लर्निंग को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, यंत्र अधिगम। सो एनीवेज मशीन लर्निंग जो हो गया ना, वो वही पार्ट हो गया कि आपने मशीन को 100 चीजें सिखा दी, अब उसको 1000 तरीके से कैसे यूज करना, वो पार्ट हो गया मशीन लर्निंग का। टू मेक मशीन लर्निंग समथिंग विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, लाइक हमको केवल एक चीज के लिए प्रोग्राम नहीं करना, हमने कॉमन प्रोग्रामिंग कर दी, अब उसको अलग अलग सिनारियोज में यूज करना, वहां पर मशीन लर्निंग का यूज आ जाएगा। और मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट हो गया। So basically जब मशीन लर्निंग करोगे तभी एआई डेवलप होगा, राइट? या एआई का एक इंटरनल पार्ट हो गया मशीन लर्निंग, कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया। आज हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, बट हम स्टोर नहीं कर सकते, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ रो डेटा को एनालाइज करने के लिए काम आता है। जो भी अपने फेशियल, कभी किसी ने ये देखा है कि जो अपना फेस रिकॉग्नाइज होता है कैमरा ऐप में या किसी में भी, उसके पीछे क्या क्या काम चलता है या क्या एल्गोरिथम लग रहे हैं पीछे, या कैसे काम करता होगा? तो कोई आइडिया? I don't know. Face का cut और मतलब placement of your eyes, nose and something. I don't know. तो वो बेसिकली डॉट्स से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और उस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के थ्रू वो एनालाइज करते हैं लाइक लेंथ, विड्थ, कितनी डेप्थ है, कितनी क्या है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को एनालाइज करके वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भैया ये फेस है,
ये आईज है, ये आईब्रोज है, ये वो है, ये सारी चीजें लाइक इनके पीछे बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस चलती है पीछे के। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। सिमिलरली डीप लर्निंग हो गया काइंड ऑफ ज्यादा डेटा को एनालाइज करना। अभी जैसे न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल है, ये आपको दिख रहा होगा कि लाइक 4 इनपुट लिए और उसको एनालाइज किया अलग अलग लेयर्स बना के। लाइक जो नेटवर्किंग आपको दिख रही है, लाइंस दिख रही है यहाँ पर, लाइंस बोलते हैं, उन सब लाइंस को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। ये तो हो गया छोटा सा कंसेप्ट अपने लोगों को समझने के लिए कि लाइक अपन को ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। इसके बड़े नेटवर्क्स कुछ इस टाइप से होते हैं और ये 3D में चलता है। और अब आप लोग सोच लो कि रोज भी बिलियंस में हुई, कॉलम्स भी बिलियंस में हुए, वो सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में हर सेकंड हो रही है। लाइक आपको दिख रहा होगा कि जो नेटवर्क्स वगैरह है वो सारे कितने ज्यादा लाइक एक समझने के लिए लाइक help me in doing something or anything. यार एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो द एक्चुअल वर्क ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Shivani, let me answer that for you. Like अपन ऑडिट्स करते हैं, सब करते हैं, तो उसमें फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिथम्स होता है। लाइक इफ वी पुट सम बेसिक इनवॉइसेस इन मशीन लर्निंग और उसमें हम उसको बताते हैं कि कौन कौन से ये हैं इनमें फ्रॉड हुआ है, तो वो डेटा ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, जैसे ऑनलाइन कभी भी हम किसी और जगह से लॉगिन करते हैं तो वो अपने को बताता है कि इज दिस यू, गूगल बताता है कि इज दिस यू, डिड यू लॉग्ड इन, क्योंकि वो एक डिफरेंट लोकेशन डिटेक्ट करता है। सिमिलरली कोई एक बहुत अनयूजुअल अमाउंट का जब ट्रांजैक्शन होगा किसी अनयूजुअल जगह से, तो अगर अपन उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में डालते हैं तो फ्रॉड डिटेक्शन में मशीन लर्निंग हमारी हेल्प कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे केसेस हैं, मतलब इनवॉइसेस में जहाँ भी फ्रॉड है वो डिटेक्ट करने के लिए, कोई अनयूजुअल अमाउंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग काम आ सकती है बहुत सारी जगह। And with this, Abhishek? Hello. This is Abhishek Tiwari. Yeah. Also, I think there can be one more application. जैसे for example, banks nowadays, I think they're just using data to determine कि किसको loan देना है, किसको नहीं. For example, you can have your inputs at one side, and फिर maybe a machine learning algorithm can decide for you कि okay, are you eligible for a certain loan or not. This is a very basic example, but I think ये भी machine learning के basis पे हो सकता है. हाँ, लैंड मैपिंग और जैसे प्रॉपर्टी मैपिंग के लिए भी यूज होता है। क्या डेफिनेटली लाइक जहां पर भी अपन एप्लीकेशंस इसकी अनलिमिटेड है। लाइक सपोज करो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं इस पीपीटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी जगह पे मशीन लर्निंग को बता दो कि हाँ इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, इसको ऐसे बताना है, वहां पे भी यूज हो सकता है डेफिनेटली। मतलब एप्लीकेशंस तो इसकी एआई की बहुत सारी जगह पे, क्या आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। So how do you suggest to start? Medical field, What? I guess. Applications. No, IIT Roorkee के एक professor, he is claiming that he has made a device which works on machine learning and it detects COVID-19 patients in 5 seconds. Wow. Okay. I'm not really sure if it works or not, but if it does, great news. Yeah, it is. Yeah, definitely. I also want to No, know how to start with. Yeah, no. like in Germany, I don't know, but जैसे कफ के वॉइस से भी some people are trying to predict कि COVID-19 है या नहीं है, मतलब जैसे हमारे alumni group पे का बता सकते हैं। No, जैसे predictive से बता सकते हैं हाँ, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जैसे अर्ली कैंसर डिटेक्शन हो गया, या फिर जो एआई हेल्थ में अभी इंट्रोड्यूस होने का बात चल रहा है, उसमें यही है कि सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे एंड फिर देन आपको मतलब ऐसा कुछ होगा कि डॉक्टर्स से भी ज्यादा एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मतलब कई बार डॉक्टर्स सेम सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, राइट? सो हार्दिक ने टॉपिक चेंज कर दिया है, जैसे अभी मशीन लर्निंग से कोरोना। Sorry. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मशीन लर्निंग से कोरोना पे आज बात चल रहा है। हाँ, I agree. So like for all us, can you tell us like how to start if we're interested in learning all of this and to know कि वो हमारी फील्ड में यूज आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो what do you suggest? वो अभी आगे है, अपन देखते हैं आगे कि लाइक केसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या machine learning can be used in anything because machine learning is a part of artificial intelligence. In order to
execute artificial intelligence, we need to first train our AI model. तो machine learning उसमें काम आती है. तो कोई भी AI मॉडल जो CA के फील्ड में यूज होता है, लाइक डेलॉयट इज डेवलपिंग अ मॉडल जहाँ पे वो पूरी ऑडिट जो है वाउचिंग वो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाएंगे. In that case they have to use machine learning to train the model. तो machine learning can be used in any aspect. कोई भी कहीं भी किसी फील्ड में अपने यूज आ सकता है. My question is, how do we start? We are like, if I want to learn artificial intelligence and I want to learn machine learning, that's what I'm asking. There are so many things. PySpark, I think you have to learn a little bit of programming because there are various softwares that can I've use in machine learning. I've started R language recently. So yeah, Okay. I'm learning a bit. Which language? R. Okay, R. R can also be used for data modeling, like when you extracting data from anywhere, and R can be used in the tools like Tableau for making use of the data. Okay, is it audible now? Yeah. Yeah, now it is. Yeah, actually I'm saying that R can be used for data extracting when you extract data, and to in the ETL application extract, transform, and load, and like the Tableau is the tool. No, actually, your voice is not audible. You write your question. Actually, काम करो. Writing it. Yeah. Yeah, definitely. Okay. So हम इसे कैसे स्टार्ट करते हैं? ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है. पाइथन हो गया, आर हो गया, जावा, लिस्प, प्रोलॉग, मैटलैब. इनके थ्रू आप इसे इस फील्ड में लाइक स्टार्टिंग कर सकते हैं. अगर आपको बेसिक नॉलेज है पाइथन का तो एटलीस्ट आप प्रोग्रामिंग को समझ पाओगे. और जो ज्यादातर एआई और इन सब चीजों की प्रोग्रामिंग है वो पाइथन के अंदर होती है. और कंप्यूटर विजन वगैरह हो गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैटलैब यूज आता है. मैथ्स के एल्गोरिदम वगैरह हो गए, वो सारी चीजें. You can go for these languages if you wanted to start with AI or machine learning kind of thing. Should we? What do you suggest? My question was. Yeah, definitely. My questions are never ending. Python is a really good sorry, start. guys. There is Yeah, also a Python is model good. available, Language is PySpark, most that suitable combines. for machine learning. Yeah, I think Python is good because there is a ready-made software available, PySpark, that is used in machine learning. Combines Spark No, and no. For Most making important the question. robot understand the language, like in English, we have to teach him, or any other language. C, C++, I guess. क्योंकि I वही think लैंग्वेज है जो मशीन से डायरेक्टली बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हो जाती है. हार्डवेयर I से think जो I अच्छे have से इंटरेक्ट हो जाती है. I think I have seen some research of NASA, and in which they said that Sanskrit is the most advanced language which I agree. machine can understand, because what happens, there are words like put and but. They have different meanings. Saying of they have different meanings, but they have the same vowels, like same sound. So machine gets confused when analyzing those words. So Sanskrit has a different kind of and what we can say कि एक अलग तरीके से हर word अलग आता है. So machine can understand better, I think. Sanskrit easy for machine to understand, hard for humans to learn. फिर हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मंत्र बोलेंगे, ओम नम 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 नम. Good one. There is scientificness. What? There's a question in chat box. Just a second, where is my chatbot? So I guess I cannot able to access the chatbot right now. Actually, yeah, no, actually,
Yeah, there are possibilities that it can be Python. It can be faster than Python, but the thing is that you will get more resources for the Python if you're stuck somewhere. Yeah, If because you there are already like cannot models. able There to are do, already models that yeah, are developed for Python, but for already Julia you trained have for to the develop. Python. Yeah. Yeah, you have to develop those models for Julia. Like if you're more comfortable with Julia, but you have to develop your own models, then of course you can go with Julia. But with other common, more prominent languages, there are more models available for you, For so the they will help starting, I you. would suggest to go with the Python because you will find many resources on the internet. So yeah, next is the technologies which you can use for the AI and machine learning. As you can see on the screen, TensorFlow by Google, Amazon Sega Maker, Google Cloud Prediction, Microsoft Azure ML. So these are the technologies where you can host or you can work machine learning or AI data. अंकित और कितना चलेगा तुम्हारा? But this is the last. And to the point always. Okay. So yeah, we have So to this wrap. is these are the courses or like online आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हो GitHub वगैरह. So I will share the link of this PPT to the in the chat board where you if you are interested and you can find this thing. Please. So this is